Good morning, students. Myself, Rajiv Verma, is going to continue chapter number 3. Uh, Now, our today's topic is effect of temperature on resistivity. To know the effect of temperature on resistivity, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर व्हाट विल बी द चेंज ऑन द रेजिस्टिविटी. So we are mentioning here the few terms, that is metallic conductor. यानी हम ये देखना चाहते हैं कि metallic conductor, semiconductor, ionic conductor, electrolyte, how the resistivity of these materials affected by increasing the temperature. Okay, तो अगर हम metallic conductors की बात करते हैं, in metallic conductors the free electrons are almost fixed. While the temperature increases of the metallic conductors, then the vibration of the atoms of the metallic conductor increases, and the electrons start colliding with the atoms more frequently. Means the frequency of the collision of the electrons increases. Due to the increase in the frequency, the relaxation time decreases. Yani if electrons are colliding quickly, then the collision between the time between two collision will decreases. Means the relaxation time decreases. And when relaxation time decreases, the resistivity of metallic conductors increases. यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. Now coming to the second point. In case of semiconductors, the relaxation time remain same. Semiconductor like germanium, silicon, इनमें जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है, वो सेम होता है, फिक्स रहता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. लेकिन जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा कि इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, देन the conductivity of the material increases. Means relaxation time is fixed, but number density of electron, yani number of electron per unit volume increases. Due to the increase of the number of electrons, the conductivity increases, and we know the conductivity is reciprocal to the resistivity. So as conductivity increases, resistivity decreases in the semiconductors, and the conclusion is, in semiconductors, if the temperature increases, resistivity decreases. Now coming to the third point, that is ionic conductors. Ionic conductors are having positive and negative both type of ions. In ionic conductor, if temperature increasing, then electrostatic attraction force between the cations and anions decreases. If the attraction force decreases, then ions will become very free to move. Due to the free movement of the ions, the conductivity of ionic conductors increases, and by increasing the conductivity, the resistivity of the ionic conductors decreases, because resistivity is reciprocal of conductivity. एक बार मैं इसे फिर बता देता हूं. आयनिक कंडक्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है कैटायन और एनायन के बीच, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के वीक हो जाने से आयंस आर वेरी फ्री टू मूव, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. कंडक्टिविटी बढ़ जाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है. यानी अब तक के 3 केसेस में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर मेटलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई, और जो आयनिक कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो गई. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे लेक्लांसियस सेल, डेनियल सेल को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जाता है. जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक इलेक्ट्रोलाइट है. तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं,
तो इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट और सोल्यूट सोलवेंट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स के डिक्रीज हो जाने से आयंस विल बिकम फ्री टू मूव। जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया तो आयंस विल बिकम फ्री टू मूव, और आयंस के फ्रीली मूव करने से सिग्मा बढ़ जाता है। सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी के बढ़ जाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं इन सभी को देखता हूं तो ओनली मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अगर मैं अदर्स की बात करता हूं तो रेजिस्टिविटी गो ऑन डिक्रीजिंग फॉर सेमीकंडक्टर्स, आयनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है। Now coming to the next point, and the next point is temperature coefficient of temperature coefficient alpha. Next topic is temperature coefficient alpha of resistivity. Temperature coefficient alpha of resistivity. अगर हम ये कंसीडर कर लें कि एट एनी टेम्परेचर T नॉट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो नॉट, and by increasing the temperature from T naught to T the resistivity become rho, यानी यहाँ पर T is greater than T naught अगर हो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा में बी डिफाइन एज चेंज इन रेजिस्टिविटी rho minus rho naught अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी rho पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज the change in the resistivity per unit original resistivity per degree rise in temperature. तो it is representing by symbol alpha. अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी की यूनिट विल बी कैंसिलिंग आउट, देन इट विल बी डिग्री सेल्सियस रेज़ टू द पावर -1। ये हो जाएगी यूनिट ऑफ दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट। अगर हम बात करें केस नंबर वन की, केस नंबर वन क्या है कि अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, सपोज कॉपर इज ए मेटल। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, यानी T इज नॉट ग्रेटर देन T नॉट, ये होने पर जो रेजिस्टिविटी है रो विल बी ग्रेटर देन रो नॉट, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बाय दिस रिलेशन अल्फा विल बिकम पॉजिटिव, यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ द मेटल्स इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है। अब आते हैं हम केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं केस नंबर 2 में सेमीकंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की। सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर की अगर बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर की इंक्रीज हो जाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। रो नोट को मैंने क्या माना है, मैंने ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनिशियल टेम्परेचर T नोट पर रेजिस्टिविटी माना है, और उसके बाद टेम्परेचर T नोट से T इंक्रीज किया जा रहा है, देन रेजिस्टिविटी विल बिकम रो। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर रो लेस देन रो नोट होगा देन अल्फा विल बिकम नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव होगा, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब अगर हम एक और केस लेते हैं, केस नंबर 3, और हम बात करते हैं एलॉयज की, जैसे कंस्टेंटम, मैग्नाइन,
कंस्टेंटन की या मैग्नाइन की बात करते हैं, यानी एलॉयज की बात करते हैं, तो एलॉयज में जो अल्फा होगा इट विल बिकम्स वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज पर नेग्लिजिबली इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाने पर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज जैसे कंस्टेंटन हुआ, मैग्नाइन हुआ एटसेट्रा, तो इनकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबली चेंज आता है, यानी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर आकर इनमें लिटिल बिट वेरिएशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसलिए जो अल्फा होगा यानी रो माइनस रो नोट क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, तो इसका मतलब अल्फा विल बिकम वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एलॉय, एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज वेरी स्मॉल फॉर द एलॉयज, वी आर यूजिंग एलॉयज टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर को बनाने के लिए हम एलॉयज का यूज करते हैं। अगर हम एलॉयज की जगह मेटल्स का यूज कर लेते रेजिस्टर को बनाने में, देन व्हाट हैपेंस, तो अगर मेटल्स का यूज करते तो जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन आता तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती, यानी जो रेजिस्टर है इन एनी सर्किट द फ्लो ऑफ चार्ज का वेरिएशन शो करता। कब? जब टेम्परेचर बढ़ जाता, क्योंकि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ती रेजिस्टिविटी चेंज होती है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स में वेरिएशन आता, ये डिक्रीज हो जाता तो चार्जेस का फ्लो ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर हम एलॉयज की बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर, ज्यादा टेम्परेचर पर 200, 400, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वे इंक्रीज होने पर लिटिल बिट वेरिएशन इन द रेजिस्टिविटी को शो करता है। इसलिए रेजिस्टर्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ एलॉयज। ओके, अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इससे हम चेंज इन द रेजिस्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन राइट रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो टी माइनस टी नॉट। और इसे फर्दर सोल्व करें तो रो कैलकुलेट करने के लिए रो इज इक्वल टू यस रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट, यहाँ रो नॉट आएगा, रो नॉट आएगा, और टी माइनस टी नॉट। चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। इन दोनों में से अगर हम रो नॉट कॉमन ले लें तो इट विल बी 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। एंड दिस रिलेशन इज आल्सो सेम इन केस ऑफ रेजिस्टर्स। अगर मैं रेजिस्टर्स की बात करूं तो टी टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टर आर टी हो, ठीक है, तो मैं इसी रिलेशन को यही रिलेशन को रेजिस्टर के लिए ही ऑब्टेन कर सकता हूं। अगर बिल्कुल सिमिलर सिंबल्स के साथ करूं तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये रिलेशन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट था और टी टेम्परेचर हो जाने पर रेजिस्टर आर हो गया, जहां पर अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाएगा। Now coming to the next point है, अगर हम मेटल्स के लिए सपोज कॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन्स, दिस इज रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। ये वैल्यूज मैं मान लेता हूँ, सपोज 50, 100, 150, 200। यहाँ पर मैं रेजिस्टिविटी की भी वैल्यूज मानता हूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द metals increases, therefore we got a curve in the increasing direction, we got the curve like this। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की,
अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये आएगा डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। अगर हम नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, एक और केस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है फॉर नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी मैंने माइक्रो ओम मीटर में ले ली, टेम्परेचर इन केल्विन्स, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, और यहाँ पर ये रेजिस्टिव हो गई 1.0, 10, 1.20, 1.30, 1.40 in multiply 10 to the power minus 6. So what we observe? We observe a graph of like this, means a little bit variation in the resistivity is observed while the temperature increases in few hundreds. That is why we can say that in case of nichrome or alloys, there will be negligible effect on the resistivity due to the raise of temperature. Due to this property, the resistors are mostly made up of alloys. Now moving towards the next point, that is ohmic and non-ohmic conductors. Ohmic and non-ohmic conductors. So as the name indicate, ohmic conductors where V proportional to I, means the graph between the potential and the current becomes a straight line, are known as ohmic conductors, and the conductors in which the graph between the VI characteristic is not a straight line are known as non-ohmic conductors. For example, अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं ओमिक कंडक्टर का, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कहलाएगा ओमिक कंडक्टर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और स्मॉल टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगी नॉन ओमिक कंडक्टर की, इसमें क्या होगा, इसमें देयर विल बी अ वेरिएशन इन द ग्राफ, तो वेरिएशन इंडिकेट दैट the conductor is not ohmic, it means not following the Ohm's law and is known as non-ohmic conductor. यानी ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स एट स्मॉल टेम्परेचर्स आर बिहेविंग एज ओमिक कंडक्टर्स, स्मॉल टेम्परेचर पर मेटेलिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो जैसे सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जंक्शन डायोड है, तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन डायोड की ड्रॉ करूं, तो जंक्शन डायोड के केस में ये हो गया V, ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द V, ये हो गया करंट पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करंट हियर। तो इसकी जो पी एन जंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ये है पी एन जंक्शन, ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एक सेमीकंडक्टर को लेता हूं, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, तो इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस तरह का ग्राफ आता है।
O, A, B, C and D। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है गैलियम ऑर्सेनाइड का। इसमें ये ग्राफ नॉन-ओमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इन बोर्ड क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड आल्सो and that represent the negative resistance, which region of the graph is representing the negative resistance। तो अगर मैं B से C तक का रीजन बताता हूँ, B से C तक, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। B से C तक का जो रीजन है, B से C तक का रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, इससे पूछा गया था कि विच रीजन इन द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव रेजिस्टेंस। So because in this region voltage is increasing but current is decreasing, that is why this region is known as the negative resistance।